So good morning to students. Today morning I have uploaded a video on SN1 and SN2 reaction mechanism. Hope you have watched it and understood all of your doubts might be cleared. So in continuation with that, today I am making another video on SN1 reaction mechanism. Now as you know, SN1, that 1 stands for unimolecular, and in yesterday's lecture you have seen that 2 stands for bimolecular. I took an example of conversion of alkyl halide into alcohol, and when we took primary alkyl halide, it was converted to primary alcohol, and the mechanism observed in that reaction was SN2 type of reaction mechanism. Now today we are going to study the another type of mechanism, that is SN1. कल के लेक्चर में मैंने आपको इमेजिन करने के लिए बोला था कि मान के चलो कि जो रिएक्शन है उसमें रिएक्शन का जो रेट है वो एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड है, 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड है, इसलिए उसको हमने बायोमोलिकुलर रिएक्शन कहा था। और उसमें हमने एग्जांपल लिया था अल्किल हैलाइड, प्राइमरी अल्किल हैलाइड का कन्वर्जन टू प्राइमरी अल्कोहल। आज आपको समझ में आएगा कि कोई भी रिएक्शन SN1 है या SN2 है कैसे डिसाइड होती है, और रिएक्शन से हमको कैसे पता चलेगा कि वो SN1 है या SN2 है। तो वॉच दिस वीडियो केयरफुली, लिसन इट केयरफुली. Let's start now another reaction from the topic, same topic, that is haloalkenes and haloarenes, but this time I am taking alkyl halide which is of tertiary type. If you have any doubt about tertiary, primary, secondary carbon atoms, it was there in 11th standard. Still, any carbon which is attached to 3 carbon atom is called as a tertiary carbon atom. As usual, if I react this with KOH, and when the conditions are kept aqueous, you know what is going to happen. This Cl will be replaced by this OH, and you will get this product, that is CH3 as it is. The rest is as it is, and here you will get OH attached along with formation of KCl. Now this may be any halogen group. Yesterday I took it X, but it may be Cl, Br or I. So again the same question I am going to ask. When you look this reaction, do you find that this reaction is nucleophilic substitution reaction? So your answer should be S. Why S? As you know, OH, a nucleophile, substituted Cl being a nucleophile. So in this reaction, a nucleophile is substituted by another nucleophile. Hence this reaction is nucleophilic substitution reaction, that is SN reaction. सिमिलर क्वेश्चन कल भी मैंने पूछा था, 2 टाइप के होते हैं ये रिएक्शन, बायोमोलिकुलर या यूनिमोलिकुलर। अब हमको कैसा पता चलेगा, आज सारा चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब बिफोर वी गो टू मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब मैकेनिज्म जाने से पहले रिएक्शन तो हमारे समझ में आई, कल के हिसाब से कल क्या हुआ था वही थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है, जब हम इसे लिखते हैं तो यू हैव टू मेंशन और माइनस चार्ज ओवर इट। ये न्यूक्लियोफाइल है, कल मैंने बताया था कि ये न्यूक्लियोफाइल, दिस इज स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज, दिस इज स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज. There is attraction between OH nucleophile and this carbon being positive charge here. Now just imagine this OH and this carbon have attraction. Now is it possible for this OH group to approach from the front side? Yesterday was also you answered no. रीजन मैंने बोला था कि ये नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, और ये जब भी यहाँ से जाएगा तो नेगेटिव चार्ज में रिपल्शन होगा, इसलिए इस साइड से, फ्रंट साइड से अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स दिस कार्बन एटम इज नॉट पॉसिबल. फिर अगेन आई लास्ट, यहाँ से तो नहीं हो सकता क्योंकि न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है. तो आई अनदर क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल फ्रॉम दिस साइड?
जैसे हमने कल देखा था। आज भी मुझे लगता है कि ये तुम्हारा आंसर आएगा यस, यहाँ से तो नहीं जा सकता, यहाँ से जाएगा। लेकिन टुडे even from the back side the approach of nucleophile is absolutely not possible। क्वेश्चन आएगा कि क्यों? अगर फ्रंट साइड से नहीं जाता है, बैक साइड से नहीं जाता है, प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं फिर, लेकिन प्रोडक्ट तो बनता है। तो ये समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा इसका मैकेनिज्म। अब SN 1 है या 2 है, तो इसको भी जैसे मान के चलता हूं मैं 1 है, कल भी मैंने माना था, क्लियर होगा, डोंट वरी। फ्रंट साइड से और बैक साइड से अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट पॉसिबल। ठीक, उसमें पॉसिबल था, इसमें पॉसिबल नहीं है। अब इसमें क्यों पॉसिबल नहीं है, फाइंड आउट। हम मैकेनिज्म की बात करते हैं और थोड़ा सा इसको मैं आपको समझने के हिसाब से उस टाइप से लिख देता हूं। यहां पर हमारा OH न्यूक्लियोफाइल, फाइन, ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आप लिखो तो चलेगा, नहीं लिखो तो भी अंडरस्टूड है। अब क्या होता है कि यहां पे जो CH3 ग्रुप है, तो CH3 ग्रुप में एक कार्बन है एंड दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 3 हाइड्रोजन। अगर हम इसके साइज की बात करेंगे और ये इस कार्बन को अटैच है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन, सो दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन collectively is a big group. That means this group is collectively a big group. This group is also big group. This group is also big group. और अब इस OH को न्यूक्लियोफाइल को यहां से ये Cl नहीं आने दे रहा, और इस OH ग्रुप को यहां से या फिर यहां से जाने के लिए देयर इज नो स्पेस। क्यों स्पेस नहीं है? कल के एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था सिर्फ CH3 था, और CH3 में था इधर कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, यहां पे था आपका X या Cl भी आ, तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो बेचारा पोरेस्ट वन, वो किसी को रिपेल नहीं कर सकता, इसलिए यहां से जाने के लिए जगह जैसे ही घुसने की कोशिश करता था, हाइड्रोजन अपनी पोजीशन बदल देता था। अब यहां पे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दिस ग्रुप इज क्वाइट बिगर ग्रुप, तो दिस OH ग्रुप कैन नॉट अप्रोच फ्रॉम द फ्रंट साइड, नॉट फ्रॉम द बैक साइड। व्हाट इज द रीजन फ्रॉम द बैक साइड? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स, बिगर ग्रुप्स, there is no sufficient space for this nucleophile to attack from the back side। बहुत कुछ क्लियर होगा, फ्रंट साइड से पॉसिबल नहीं है, बैक साइड से पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमारे पास ये जो 2 मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल हमारा टर्शियरी एल्किल हैलाइड और दूसरा हमारा मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियोफाइल है, रिएजेंट है, इन दोनों मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल यानी OH फ्रंट साइड से भी नहीं जा सकता और बैक साइड से भी स्पेस नहीं होने की वजह से नहीं जा सकता, यानी ये मॉलिक्यूल रिएक्शन का रेट, स्पीड डिसाइड नहीं कर सकता। यानी इन दोनों में से, इससे तो जब इसके तो रास्ते पूरे बंद है, यानी अब जो कुछ करना पड़ेगा इस अकेले मॉलिक्यूल को करना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट बनेगा। इज दैट क्लियर? प्रोडक्ट बनने के लिए क्या है, इसने जाना चाहिए, और ये तो जा नहीं सकता क्योंकि स्पेस नहीं है फ्रंट साइड से, दूसरा नेगेटिवली चार्ज ग्रुप है, इसलिए अब ये कुछ नहीं कर सकता। अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल तो कुछ कर नहीं पा रहा, इसका मतलब रिएक्शन की स्पीड, प्रोडक्ट बनने की स्पीड, रेट ऑफ द रिएक्शन दोनों पे डिपेंड नहीं है, एक पे डिपेंड है। कौन से एक पे? टर्शियरी अल्किल हैलाइड पे। एज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन one molecule only, this reaction is SN1. What this one stands for? Unimolecular, means the speed of the reaction decided by only one molecule. In this example, it is decided by tertiary alkyl halide, not by the nucleophile. अब उसमें कैसा था कि दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी थी, फ्रंट साइड से पॉसिबिलिटी नहीं थी, बैक साइड से था, तो दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे थे रेट ऑफ द रिएक्शन। इसमें ये मॉलिक्यूल कुछ नहीं कर सकता जब तक ये उसको स्पेस नहीं बनाता, यानी रिएक्शन की स्पीड, रेट डिपेंड्स ओनली ऑन टर्शियरी अल्किल हैलाइड। इस केस में वो ब्यूटिल है, इसलिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज SN1।
तो कल मैंने एक रेट इक्वेशन बनाया, तो इसका भी मुझे रेट इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या वो दोनों मॉलिक्यूल्स पे है डिपेंड? नहीं, एक भी है। कौन सा? दैट इज टर्शियरी जो है हमारा C और Cl लिया मैंने, इस पे ही डिपेंड है, दूसरा लेने की जरूरत नहीं। प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालेंगे तो इट विल बी अ कांस्टेंट। इसको बोलते हैं रेट इक्वेशन। याद रखना SN2 में दोनों भी मॉलिक्यूल आते हैं और SN1 में एक ही मॉलिक्यूल आता है। तो चलो रेट इक्वेशन हुआ। अब डिटेल में स्टडी कर दे इसका मैकेनिज्म होता कैसे है, ये तो नहीं जा सकता। अब देखो होता क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल इट इज नाउ रेडी, दिस OH वांट टू गो टू दिस कार्बन, बट लेकिन स्पेस नहीं है, फ्रंट साइड से ये नहीं आने दे रहा, बैक साइड से स्पेस नहीं है। तो देखिए क्या होता है, आई जस्ट रब फॉर अ सेकेंड। नाउ सी, हियर इज योर CH3, हियर इज योर CH3, हियर इज योर CH3। होता क्या है, OH अपनी जगह पे कुछ नहीं कर पा रहा। दिस मॉलिक्यूल, देखिए क्या हो रहा है, CH3 as it is, this CH3 as it is, and this CH3 as it is. This molecule weakens this particular bond. उस बॉन्ड को उसने क्या किया है, थोड़ा सा वीक किया है। क्यों वीक किया है? उसको पता है कि OH इज रेडी, इट कैन फॉर्म अ बॉन्ड। OH बॉन्ड बनाएगा तो मोर स्टेबल कंपाउंड बनेगा, तो ये बॉन्ड कर देता है वीक। अब क्या ऐसा बहुत देर तक हो सकता है, रह सकता है? नहीं। तो वन मोर थिंग, यहाँ पे स्टेबल है, इसने बॉन्ड तोड़ने की कोशिश की, तो जैसे बॉन्ड तोड़ेगा या टूटेगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज? स्टेबिलिटी विल डिक्रीज। स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो एनर्जी विल इंक्रीज। और मैंने कल ही बोला था कि जब किसी रिएक्शन में एनर्जी बढ़ जाती है, अनस्टेबिलिटी अटेन होती है, उस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां पर आ गई आपकी ट्रांजिशन स्टेट, जो बहुत देर तक नहीं रहने वाली, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट बनना है, OH अभी ने अपना रोल कोई प्ले नहीं किया, इसने अपना बॉन्ड वीक किया, वीक करने से एनर्जी बढ़ गई, अनस्टेबिलिटी बढ़ गई, उस स्टेट को हमने कहा ट्रांजिशन स्टेट। अब यह ऐसा ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, हेंस होता क्या है, ये तीन ग्रुप अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और इसमें से कौन बाहर चला जाता है, Cl माइनस। तो ये अगर माइनस बना तो इट विल गिव अ पॉजिटिवली चार्ज। फिर 11th में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कार्बोकैटायन जो रहते हैं, कार्बोकैटायंस मतलब जिस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं, उसमें प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी स्टेबल होते हैं, सेकेंडरी से ज़्यादा टर्शियरी स्टेबल होते हैं। तो ये जो कार्बोकैटायन बना ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है, और टर्शियरी कार्बोकैटायन काफ़ी स्टेबल है, इसलिए ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये बन गया आपका प्रोडक्ट, लेकिन क्या ये प्रोडक्ट अल्कोहल है? नहीं। लेकिन प्रोडक्ट क्यों बना? तो ब्रेकिंग, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड टर्शियरी कार्बोकैटायन इज फॉर्म, एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन कंपैरेटिवली स्टेबल है, इसलिए इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट फर्स्ट। जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन ये बना, मतलब यहां पर एक स्टेप रिएक्शन की कंप्लीट हुई, क्योंकि प्रोडक्ट बना। जितने प्रोडक्ट्स बनेंगे उतने नंबर ऑफ स्टेप्स की रिएक्शन होती है। कल की रिएक्शन में हमने देखा था इट वाज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, क्योंकि डायरेक्ट इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट आई थी और डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया था, तो वो एक स्टेप कंप्लीट हुई थी। यहां डायरेक्ट प्रोडक्ट बना है क्या? नहीं, प्रोडक्ट के कार्बोकैटायन है, बट स्टेप तो कंप्लीट हुई क्योंकि प्रोडक्ट बना। नाउ व्हाट हैपेंस इन द सेकंड स्टेप, दैट कार्बन, दिस CH3 ग्रुप्स एज इट इज, अब OH निगेटिव जो अभी तक खामोश बैठा था क्योंकि वो जा नहीं पा रहा था, ये जैसे ही बन गया, पता हो गया उसको कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसको नेगेटिव चार्ज है। अब ध्यान से समझना, ये OH ग्रुप अब यहां से जा सकता है क्या? यस, यहां स्पेस बन गई, पहले स्पेस नहीं बन रही थी, अब स्पेस बन गई। यहां से जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। इसका मतलब अब इस सेकंड स्टेप में दिस OH ग्रुप दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल may approach this carbon even from the front side, even from the back side. In SN2 reaction mechanism, Asterides reaction, remember it, उसमें जो था it was only backside approach of nucleophile.
But in this case, the nucleophile may approach from front side, may approach from back side. होगा कैसे? डायरेक्ट बॉन्ड बनने से पहले, फिर मैंने बोला जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो पहले एक स्टेट आती है जिसमें एनर्जी हाई होती है, ये तो अभी अप्रोच करेगा. नाउ ये हमारा कार्बन, इधर का CH3, इधर का CH3. अब क्योंकि ये OH ग्रुप फ्रंट साइड से भी जा सकता है और बैक साइड से भी जा सकता है, इसलिए मैं आपको दो चीजें बताऊंगा. इट मे कम फ्रॉम दिस साइड, वीक बॉन्ड. देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, आई राइट हियर, CH3 as it is. It may come from this side. अब ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों बनाया? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. लेट अस से दिस इज नंबर 1, दिस इज सेकंड पॉसिबिलिटी. दो क्यों बनाया मैंने? अगर OH फ्रंट साइड से गए तो ऐसे दिखेगा, OH अगर बैक साइड से गए तो ऐसे दिखेगा. क्या ये स्टेबल है? नहीं. क्या ये अनस्टेबल है? यस. अनस्टेबल स्टेट मतलब कौन से स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट. ये ट्रांजिशन स्टेट. दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी दोनों, इसलिए मैंने दो बार बताया. तो ट्रांजिशन स्टेट आ गई. ट्रांजिशन स्टेट बहुत देर तक रहती है क्या? बिल्कुल नहीं. तो इट विल बी नाउ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. तो दो प्रोडक्ट फिर बनेंगे, पॉसिबिलिटी है. हालांकि प्रोडक्ट सेम है, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है? CH3, here is OH, or first, second, OH, CH3 and CH3. तो जो ओरिजिनल रिएक्शन मैंने अभी लिखा था स्टार्टिंग में, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल बना था टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड से या अल्किल हलाइड से, तो ये प्रोडक्ट बन गया. ये और ये एक ही है, लेकिन हमने दो अलग अलग चीज़ों से क्यों बताया? अगर OH फ्रंट साइड से आया तो और बैक साइड से आया तो दोनों भी एक ही है, लेकिन दो प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन हम दो तरीके से बता सकते हैं क्योंकि हमने दो ट्रांजिशन स्टेट बताई, इसलिए ये प्रोडक्ट. अब हमारा प्रोडक्ट तो बन गया. जैसे यहां से यहां तक हुआ था, स्टेप 1 हो गई थी, पर स्टेप 1 में डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बना था, इसका मतलब इसमें और एक स्टेप लगी. तो कैन आई मेक अ स्टेटमेंट दैट SN1 रिएक्शन इज 2 स्टेप रिएक्शन. 2 स्टेप की रिएक्शन है. दिख रहे आपको सामने? कल हमने जो बात किया था उसमें कहती कितनी स्टेप्स थी? एक ही स्टेप थी. तो एक स्टेटमेंट बना देते कि SN1 रिएक्शन इज अ 2 स्टेप रिएक्शन. अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स देखिए, मैंने कल कहा था कि जब SN2 रिएक्शन होती है देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. अब जरा यहां ध्यान से देखो, क्या इसमें 100% इन्वर्जन हुआ? नहीं. 100% इन्वर्जन मतलब जिस साइड में न्यूक्लियोफाइल था उसी साइड में न्यूक्लियोफाइल आना, वैसा यहां दिख रहा है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी. यहां तो नहीं दिख रहा है. इसका मतलब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है. तो ये इन्वर्जन है. ओके, इन्वर्जन यानी उल्टा होना, लेकिन इन्वर्जन इसमें हो सकता पॉसिबिलिटी, लेकिन ये भी तो हो सकता. अब इसे क्या बोलेंगे? इसको हम इन्वर्जन बोलेंगे. और ये इन्वर्जन की पॉसिबिलिटी कितनी है? 50%. ऐसा दोनों में से जब कुछ भी हो सकता तो पॉसिबिलिटी इसकी 50% है, इसकी 50% है, यानी इसकी 50% है, इसकी 50% है. इसे तो हम इन्वर्जन बोल रहे हैं, और इसे बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. और इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 50%. यानी SN1 रिएक्शन में 50% इन्वर्जन या 50% रिटेंशन हो सकता है. SN2 रिएक्शन एक स्टेप की, एक ट्रांजिशन स्टेट. SN1 रिएक्शन 2 ट्रांजिशन स्टेट, फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट, सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट. लेकिन हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो सेकंड स्टेप का फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट. और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो देयर इज 50% रिटेंशन, देयर में बी 50% ऑफ इन्वर्जन. तो ये है आपकी SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म. कल हमने बात की थी कि उसका एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है, इसका भी बनाना पड़ेगा, एनर्जी के साथ क्या क्या चेंजेस हुए. तो लेकिन राइट नाउ आई होप कि वो यहां तक समझ में आ गया होगा. इन्वर्जन और रिटेंशन भी समझ में आऊंगा. जहां पर नहीं समझा वीडियो को पॉज करना, प्रॉपरली वापस से सुनना और समझ लेना.
अब जाते हैं हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की तरफ। इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनेगा कैसे, जैसे हमने कल बनाया था उसी टाइप से बनाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा क्योंकि इसमें 2 स्टेप आए। कल के एक रिएक्शन याद करोगे तो उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट आई थी तो एक पिक आया था, इसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट आई तो दो पिक आएंगी। लेट्स फाइंड आउट कि अब होता कैसा है। तो आई नाउ रब दिस एंड फाइंड आई जस्ट ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर दिस SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन। अगेन इस तरफ क्या था, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और इधर क्या था, स्पीड ऑफ द रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हमने कंसिडर किया था कि चलो A पॉइंट से रिएक्शन स्टार्ट हुई, जैसे ट्रांजिशन स्टेट आएगी फर्स्ट आई पॉइंट आउट इट B, क्योंकि वो टर्शियरी कार्बोकैटायन बनने से पहले की स्टेप है जिसमें एनर्जी बहुत हाई है। अब वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगी क्योंकि टर्शियरी कार्बो इतने स्टेबल है कि और रिएक्टेंट के उतने नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली स्टेबल है इसलिए थोड़ा सा उसमें डिक्लाइन आएगा, थोड़ी सी एनर्जी कम होगी। दिस इज पॉइंट C। देन अगेन सेकंड स्टेप विल स्टार्ट। जब भी सेकंड स्टेप स्टार्ट होगी बॉन्ड बनना शुरू होगा, अगेन एनर्जी विल इंक्रीज, लिटिल बिट ऑफ इंक्रीज इन एनर्जी, एंड देन पॉइंट आएगा D एंड दैट पॉइंट D इज कन्वर्टेड, फाइनली जाएगा पॉइंट E के तरफ। अब ये पॉइंट जो मैंने ड्रॉ किया वो क्या क्या है, यहां से हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। कल मैंने बोलना भूल गया था, दिस इज डिनोटेड एट डेल्टा H। थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा है, हीट ऑफ द रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। इतनी हीट उसमें से इवॉल्व हुई तभी तो जो प्रोडक्ट बना उसकी एनर्जी कम है, एनर्जी कम है मतलब हीट इवॉल्व हुई, स्टेबिलिटी बढ़ गई। और यहां से यहां तक पॉइंट B क्या है, व्हाट इज पॉइंट B, तो इट इज ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1। व्हाट इज C ट्रांजिशन स्टेट है क्या, नहीं, फिर वो क्या है, इट इज टर्शियरी कार्बोकैटायन। एंड पॉइंट D क्या है, ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2। व्हाट इज E इज प्रोडक्ट्स। और यहां से यहां तक क्या है, कल के ग्राफ में भी ऐड कर देना। और यहां से यहां तक क्या है, चेंज इन एनर्जी, दैट इज डेल्टा E। अब क्योंकि 2 बार आया तो हम पहले को बोलते हैं डेल्टा E1, डेल्टा E2। ए से हमने रिएक्शन स्टार्ट की, पहली ट्रांजिशन स्टेट आई, कार्बोकैटायन बना, थोड़ी सी एनर्जी डिक्लाइन हुई क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबल है। कल वाली रिएक्शन में ऐसा नहीं आया था इसलिए उसको हमने एक ही पिक था। देन थोड़ा सी फिर एनर्जी बढ़ गई और फाइनली बन गए प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब आपको याद कैसे रखना है, जब रिएक्शन SN2 होगी, एक स्टेप की रिएक्शन होगी, एक ही पिक आएगा, एक ही ट्रांजिशन स्टेट आएगी, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। जब रिएक्शन SN1 होगी, 2 स्टेप की रिएक्शन होगी, 2 स्टेप की रिएक्शन होगी मतलब 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे मतलब 2 ट्रांजिशन स्टेट आएगी, जो 2 ट्रांजिशन स्टेट आएगी वो 2 ट्रांजिशन स्टेट, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। इसको हम फाइनल प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन ये लिटिल बिट थोड़ी देर के लिए टर्शियरी कार्बोकैटायन क्योंकि स्टेबल है थोड़ी देर के लिए बनता है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट तो यही है। बट SN1 रिएक्शन हैज हाउ मेनी स्टेप्स, 2 स्टेप्स, हेंस हाउ मेनी ट्रांजिशन स्टेट्स, 2 ट्रांजिशन स्टेट्स। SN1 रिएक्शन में अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल मे बी फ्रॉम फ्रंट साइड, may be from second back side, but when after the formation of carbocation, in the first step nucleophile is not playing any role, hence our tertiary alkyl halide is only responsible for forwarding this reaction, completion of this reaction, hence this reaction is unimolecular, that is nucleophilic substitution unimolecular reaction। अब बोलते टाइम इसको SN लिखते हैं लेकिन पढ़ते टाइम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब हमने लिया कि भाई चलो प्राइमरी अल्किल हैलाइड है तो कौन से टाइप का रिएक्शन होगा, मैकेनिज्म होगा SN2। अगर टर्शियरी है तो कौन से टाइप का रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा, SN1। एकदम क्लियर।
Might be in your mind there is a question, what about secondary alkyl halides? So students, थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ा लॉजिक. इस रिएक्शन में SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म क्यों हुआ? क्योंकि इसमें बल्कि ग्रुप्स अटैच थे. प्राइमरी अल्किल हैलाइड में SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म क्यों हुआ? क्योंकि तीनों हाइड्रोजन थे, तो न्यूक्लियस का जाना बैक साइड से पॉसिबल था. यानी जैसे जैसे रिएक्टेंट में, मेन रिएक्टेंट सबस्ट्रेट में बल्कीनेस बढ़ेगा तो रिएक्शन की ऑर्डर बदलती जाएगी. 2 कब होगी? जब मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे या छोटे वाले सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, छोटे ग्रुप्स होंगे. जैसे अगर हाइड्रोजन होंगे तो SN2 रिएक्शन होगा, तीनों अल्किल ग्रुप होंगे, बड़े ग्रुप होंगे तो SN1 होगा. सेकेंडरी में एक ग्रुप बड़ा है, एक ग्रुप छोटा है, तो दैट मे अंडरगो आइदर SN1 और SN2 डिपेंडिंग अपॉन द सब्स्टिट्यूएंट साइज. If the groups attached to the carbon atom, size of those atoms, those substituents decides the order or the rate of the reaction. But if there is bulky groups attached, follows SN1 reaction mechanism. Bulkiness is not there, follows SN2 type of reaction mechanism. And if in secondary, if there is bulkiness, it may follow SN1. If there is no bulkiness, it will follow SN2. So this is all about SN2 reaction mechanism. 2 मार्क का क्वेश्चन कर लेना. कुछ पॉइंट्स में फास्ट में बोल देता हूँ, वीडियो पॉज करके नोटबुक में नोट डाउन कर लेना. बोर्ड के लिए क्वेश्चन आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन. सिंपल है, सारी चीज़ें तो क्लियर है, फिर भी थोड़ा फास्ट में कर लेता हूँ. SN1 SN2 में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक यूनिमॉलिक्यूलर है, एक बाइमॉलिक्यूलर है. एक रिएक्शन एक स्टेप की, एक 2 स्टेप की है. एक में 2 ट्रांजिशन स्टेट में, एक में 1 ट्रांजिशन स्टेट में. ठीक. एनर्जी के ताल्लुक से इसमें 2 एनर्जी वैल्यूज है दोनों स्टेप के लिए, उसमें 1 एनर्जी वैल्यू है. उसमें SN2 रिएक्शन में बैक साइड अप्रोच सिर्फ होता है. देयर इज ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ बैक साइड अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन SN2. whereas in SN1, in the first step there is no backside or front side approach is possible, but in the second step it may approach from the back side or front side. नेक्स्ट डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट ये भी हो सकता है. क्या हो सकता है कि इन SN2 रिएक्शन देयर इज ऑलवेज 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, पर इसमें 100% इन्वर्जन होता नहीं है, तो इसमें रिटेंशन भी हो सकता है, इन्वर्जन भी हो सकता है. 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन. समझा? आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स अबाउट ऑल द doubts have been clear about SN1 and SN2. So we will be meeting in a next video with some another topic. Don't forget to comment on this video when it will be uploaded. The first video is uploaded in the morning about SN2 reaction mechanism. Also comment on that. This video will be uploaded today evening or tomorrow morning. Also don't forget to comment on that. ठीक, अच्छे से पढ़ो, concentrate करो. There is nothing hard in chemistry. Chemistry is easy. Be positive.